اب لا کیا ہے؟ یعنی پی پی سی پاکستان کی یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کوئی بھی ایسا مواد جو کہ انڈیسنٹ ہوگا، کوئی بھی ایسا مواد جو کہ آبسین ہوگا، کوئی بھی ایسا مواد جو کہ سیکیورٹی کے خلاف ہوگا، پاکستان کی انٹیگریٹی کے خلاف ہوگا، پاکستان کے فورن ریلیشن کے خلاف ہوگا، فورن ریلیشنز کے خلاف ہوگا، تو اس کے اوپر ایک ریزنیبل ریسٹرکشن کی بات وہ کرتے ہیں، اور ریزنیبل ریسٹرکشن انڈر لا ہے، وہ کسی کی خواہش کے تابع نہیں ہے۔ تو یہ جو کل صاحب گرفتار ہوئے ہیں عمران ریاض، ان کے خلاف ایک مقدمہ ہے جو کہ پی پی سی کی دفعہ 121A کے تحت ہے، اور ان کے خلاف لگ بھگ 20 کے خلاف ڈیفرنٹ کاؤنٹس پہ مقدمات ہیں، جس میں انہوں نے آبجیکشنیبل مٹیریل۔ اب آزادی اظہار کیا ہے؟ آزادی اظہار یہ ہے کہ آپ اپنی بات بے لاگ کہیں۔ بے لاگ بات کون سی کہیں؟ جن کی آرٹیکل 19A ریسٹرکشنز پرووائڈ نہیں کرتی۔ اگر آپ کے کنٹینٹ سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ پاکستان کے مفاد کے خلاف ہے، آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ تنقید سے بیونڈ جا کے آپ کے ذاتی ایجنڈے کو سرو کرتے ہوئے پاکستان کی انٹیگریٹی کے اوپر سوال اٹھا رہی ہے، یا وہ پاکستان کے فورن ریلیشنز کو فرینڈلی سٹیٹس کے ساتھ کسی طرح سے متاثر کر رہی ہے، یا وہ انڈیسنسی کے زمرے میں آتی ہے، یا وہ پاکستان کی سالمیت کے اور سیکیورٹی کے خلاف بات آ رہی ہے، تو ان حالات میں آپ ایک قابل گرفت جرم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو عمران ریاض صاحب کے خلاف جو مقدمہ قائم ہے، اس میں انہوں نے ایک اپنی ویڈیو ڈاؤن لوڈ کی، اس کو یوٹیوب پہ اپنے چینل پہ ڈالا، اور اس ویڈیو کے کنٹینٹس کیا ہیں؟ ویڈیو کے کنٹینٹس یہ ہیں کہ وہ پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات پر اپنی ایک رائے قائم کر رہے ہیں، اور اس میں وہ ریاستی اداروں کے سربراہان کے خلاف بھی اپنی ایک رائے قائم کر رہے ہیں۔ رائے قائم کرنا ان کا حق ہے، لیکن اگر وہ یہ رائے قائم کرتے ہوئے یہ ریڈ لائن کراس کریں گے، اس میں کوئی ایلیگیشن اس طرح سے نہیں ہے جس کی پولیٹیکل نیچر ہو، اس کی پوری ان کے کنٹینٹ کی اگر آپ اس کو پوری طرح سے اس ایف آئی آر کو پڑھیں گے تو وہ اس کے اوپر ریپروڈیوس ہوئے ہیں جو انہوں نے کہا ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ یہ پاکستان کی سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کی بات پر، اور جو انہوں نے کہا وہ انتہائی آبجیکشنیبل، قابل اعتراض، اور وہ اس کیٹیگری کے اندر فال کرتا ہے کہ جس پہ آرٹیکل 121 اسٹیٹ یہ سمجھتی ہے کہ آرٹیکل 121A پی پی سی کا سیکشن 121A اس کے اوپر اپلائی ہوتا ہے، اور یہ آرٹیکل 19A فریڈم آف ایکسپریشن کے اندر پرووائڈڈ ریزنیبل ریسٹرکشنز کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اب ان کے خلاف یہ کارروائی ہوئی، مقدمہ درج تھا۔ آپ کے علم میں ہے کہ انہوں نے کل رات سے یہ شور مچایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے دروازے کھل رہے ہیں۔ ہم نے اپنا موقف کل رات کو ہی دیا کہ وہ اسلام آباد سے گرفتار نہیں کیے گئے، ان کو اٹک سے، جو کہ پنجاب کی حدود کے اندر فال کرتا ہے، وہاں سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور لاہور ہائی کورٹ کا جہاں کی یہ جورسڈکشن ہے، ان کا ہمارے پاس کوئی ایسا آرڈر نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو ہم عدالت کی حکم عدولی کبھی نہیں کر سکتے۔ عدالت کے حکم کو ہم بالکل اس کی لیٹر اینڈ اسپرٹ میں اس کے اوپر عمل درآمد کرتے۔ اب جب یہ صورتحال تھی تو اس میں جب ان کی گرفتاری ہوئی تو رول آف لا ایک چیز کا نام ہے، کوئی شخص بھی ابو دا لا نہیں ہے۔ اگر ان کے خلاف مقدمہ درج ہے، قابل گرفت ہے، کوگنیزیبل ہے، تو یہ کوئی ایک ایسی شخصیت کہ کیا ان کے خلاف وہ ابو دا رول آف لا ہیں؟ ان کے خلاف پرچہ ہو تو ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا؟ قطعی طور پر نہیں۔ وہ آئین کی بھی خلاف ورزی کر رہے تھے اور پاکستان کے مجوزہ قوانین کی بھی خلاف ورزی کر رہے تھے، تو اس صورت میں ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ اب اگر اس کو یہ رنگ دے کر کچھ لوگ اپنا سیاسی تعلق دکھانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس چیز کے اوپر کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ وی آل نو، ہمیں پتہ ہے کہ ان کی ایک جو پوزیشن ہوتی ہے، ایک جرنلسٹک پوزیشن ہوتی ہے، میں اس پہ کوئی قید نہیں لگا سکتا کہ آپ اپنا اوپینین فارم نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ کے اس پوری بات سے باعث ریفلیکٹ کرتا ہو، آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے نمائندے بنے ہوں، آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو پرووائڈ کرتے ہوں، آپ ان ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے لوگوں کی عزتیں اچھالنے کا
धंधा करते हों। आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपकी जो भी इनपुट्स आती हैं, आप अगर एक जर्नलिस्ट की पोजीशन लेते हैं तो फिर आप एक पार्टी वर्कर की पोजीशन लेते हैं। ये दो अलग-अलग बातें। अगर आप एज अ जर्नलिस्ट करते तो आपकी वो जो पोजीशन थी, जब आपने पहले कुछ हमारे जर्नलिस्ट दोस्तों के साथ ये वाकयात पेश आए कि उनके ऊपर को ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल के तहत उस वक्त की गवर्नमेंट के तहत पर्चे दर्ज हुए, तो आपने जस्टिफाई किया और एग्जैक्टली इन्हीं लाइंस पे जस्टिफाई किया कि ये जस्टिफाइड एक्ट्स हैं। ये क्योंकि इन्होंने आर्टिकल 19A की खिलाफ वर्जी की है, ये क्योंकि पीपीसी की सेक्शन 121 के ज़िम्रे के अंदर आती हैं, और ये जो है मामलात सेडिशन के और गद्दारी के आपने फतवे दिए उन जर्नलिस्ट के ऊपर। तो इसीलिए कल से जितने भी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं वो आपकी उस पोजीशन को और इस पोजीशन को रिलेट कर रहे हैं, और ये जो आपने पोजीशन इख्तियार की है वो आपने एक पॉलिटिकल पार्टी के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए की। जो वो पोजीशन ले रहे हैं उस लाइन को आप टो कर रहे हैं। सो आई जस्ट वांट टू इस्टेब्लिश दिस फैक्ट पाकिस्तान के अवाम उन्नास के सामने कि हमें उनके साथ कोई ज़ाती रंजिश नहीं है, लेकिन अगर वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के उन अदारों का जो कि टीवी के आगे आके बोल नहीं सकते, जो कि अपनी बात नहीं कर सकते, अब इनका वेट इतना नहीं है कि इनको इतना इस वक्त DGISPR आ जाएं और वो आके इनका द वन हु इज पंचिंग अबव हिज साइज वो आके कहें कि ये बात जो कर रहे हैं गलत। ये तो एक 5th जनरेशन वॉरफेयर का हम सब सुन रहे थे। ये इसकी खबर कोई आज हमें नहीं मिल रही। हमें पता था कि पाकिस्तान के खिलाफ जो वो ममालिक हैं जिनकी एजेंसीज यहाँ पे काम कर रही हैं, वो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को अंडरमाइन करने, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी को अंडरमाइन करने, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर जा बेजा इल्ज़ामात लगाने, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के इल्ज़ामात लगाने। मैं तो हैरान हूँ कि इमरान खान ने भी कल अपनी तकरीर में कहा कि मुस्लिम लीग की हुकूमत अदारों की मदद से हुकूमती असर और रसूख को इस्तेमाल करते हुए इंतखाबात में जीतने की कोशिश कर रही है। मैं इमरान खान साहब से ये मुतालबा करता हूँ कि अगर आपके पास कोई सबूत है तो वो बताएं। आपकी यास्मीन राशिद साहिबा ने एक सेक्टर कमांडर के मुतल्लिक कहा कि वो इलेक्शंस को मैनिपुलेट कर रहे हैं। मैंने फिर कहा कि अगर आपके पास कोई सबूत है तो प्लीज़ लेकर आएं। बार बार हम ये कह रहे हैं कि आप ये बिल्कुल बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं, और इस बुनियाद पे आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि आप समझ रहे हैं कि आपको इलेक्शन के अंदर एक वाज़ेह शिकस्त है। आपको इस बात का पता है कि अवाम के अंदर आपकी कोई पजीराई नहीं है। आपको इस बात का भी इल्म है कि आप पिछले 4 साल के अंदर जो मिस गवर्नेंस, नॉन डिलीवरेंस, बेरोज़गारी, महंगाई, आपने जो वादे किए थे उनको पूरा नहीं किया। आपने सियासी इंतकाम पर मबनी अपनी हुकूमत को कायम रखा, और आपने अपने मुखालिफिन के खिलाफ पे दर पे ऐसे मुकदमात कायम किए। तो आज मैं हैरान होता हूँ उन्हीं चेहरों से ये इंसानी हकूक़ की बातें सुनते। हम तो इंसानी हकूक़ के अलमबरदार हैं, हम तो कहते हैं कि वी स्टैंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। बट ये जो केस आज अगर इमरान रियाज का है, और अगर ये लॉ के तहत काबिल गिरफ्त जुर्म है, अगर ये आइन के तहत आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी है, तो फिर उसको आप कैसे रिलेट कर सकते हैं एक ऐसे पोजीशन के साथ जहां पर लोगों के साथ ज्यादती होती रही। आपने तो प्रोसिक्यूशन के नाम पे परसिक्यूशंस की। हमने उस वक्त आके आपके सामने सिर्फ ये कहा कि आप नाजायज मुकदमात कायम कर रहे हैं। आप हुकूमत के अंदर वो रविश इख्तियार कर रहे हैं, बिला जवाज, बिला सबूत, बेबुनियाद मुकदमात कायम करके आप बिल्कुल ऑपोजिशन को दीवार के साथ लगा रहे हैं। बट ये तो एक हाल, ये तो वो केसेस। पंजाब इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अभी आपको हम खबर देंगे। एंकर पर्सन इमरान रियाज वक्फे के बाद मकामी अदालत में दोबारा पेश हो गए हैं। इमरान रियाज को इलाका मजिस्ट्रेट यासिर तनवीर की अदालत में पेश किया गया, और पेशी के मौके पर PTI कारकुन भी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद थे। हाफिज खलील अहमद बोल न्यूज़ के नुमाइंदा हमारे साथ हैं, उनसे तफसीलात हम जानेंगे। जी खलील, आगाह कीजिएगा पेशी से मुतालिक। जी बिल्कुल, सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज जो है तकरीबन 5 घंटे के वक्त के बाद दोबारा जो है यहाँ पे मकामी अदालत में यासिर तनवीर जो इलाका मजिस्ट्रेट है उसकी अदालत में उनको पेश किया गया है। और इस वक्त जो है कमरे अदालत में समाअत शुरू हो चुकी है, जबकि पेशी के मौका पर PTI के रुकन कौमी असम्बली मेजर तैर सादिक और PTI के दीगर जो है अरकान कसीर तादाद में कचहरी में मौजूद हैं, और PTI कारकुनान की तरफ से इमरान रियाज के हक में शदीद नारेबाजी की जा रही है। इस मौका पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम। ठीक है, बहुत शुक्रिया खलील, आप हमें अपडेट कर रहे थे। एक बार फिर चलते हैं, सूबाई वजीर कानून मलिक अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है।
और वो लाइन कौन सी है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझ पर तनकीद नहीं कर सकते किसी ऐसी पोजीशन से कि अगर मैं गवर्नमेंट में हूँ या मेरे पास कोई एक ऐसा ओहदा है या मेरे पास कोई एक ऐसी पोजीशन है, चाहे मैं किसी जुडिशरी के बेंच पे बैठा हूँ, आपको हक हासिल है। अगर आप मेरी ज़ात पे तनकीद करते हैं या आप मेरे फैसलों पर तनकीद करते हैं, अगर मैं पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस में हूँ, अगर आपके पास कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है तो उसकी बुनियाद ये कॉन्स्पायरिंग एंड मेलाइनिंग ऑफेंस है, लॉ कहता है कि ये ऑफेंस है, तो आपको कैसे छूट दे दी जाए कि आप गैर कानूनी इकदामात करें और आपको इजाज़त मिली रहे। अब जब ये मुझे थोड़ी तशवीश थी, मैंने आपसे कहा, फ्रैंकली मैंने आपसे कहा कि मुझे थोड़ी तशवीश थी, तो मैंने जब पूरा रिकॉर्ड इनका चेक किया तो मुझे कुछ अजीबो गरीब हकाइक खुले। अब अगर मैं जवाबदेह हूँ, मैं अपने मामलात का जवाबदेह हूँ, आप अपने मामलात के जवाबदेह हैं, हम जितने लोग हैं हम सब अपने मामलात के जवाबदेह हैं, तो फिर यहाँ पे सेक्रेड काउज नहीं हो सकती। अगर आप ये समझते हैं कि आप एक जर्नलिस्ट हैं, आपके पास एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल है और आप एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के आपके पास लाइसेंस है टू किल एनीवन, दैट इज नॉट द केस सर। आप ये नहीं कर सकते। आप खुद भी देखें, फिर आपको अपने क्रेडेंशियल्स बयान करने पड़ेंगे। आपके अपने क्रेडेंशियल्स में बहुत सारे जवाबात हैं जो देने पड़ेंगे। आपको बताने पड़ेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के लिए गए कॉन्ट्रैक्ट्स फिशरीज डिपार्टमेंट्स के कैसे लिए गए, करोड़ों रुपए उनके अंदर कैसे दिए गए, बुजदार सरकार के साथ आपके क्या मामलात थे। यू हैव टू टेल दैट सर। आपको बताना होगा कि वो करोड़ों रुपए किन अकाउंट्स में से आए और किन अकाउंट्स के पास गए। मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर ये केस है, अगर वो सवाल हमसे हो सकता है, वो जवाब हमें FIA इन्वेस्टिगेट कर सकती है। वो जो मनी लॉन्ड्रिंग के बेबुनियाद केसेस थे, ये तो बड़े क्लियर एविडेंस के साथ केसेस है। तो फिर ये साहब भी बताएं आके कि यकदम इनकी जो माली सूरत हाल थी वो कैसे इतनी बुलंद हुई कि वो एक बड़े साहिबे जायदाद भी बन गए और करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की उनकी जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं वो भी सामने आ गई। और वो उनकी तफसीलात जो है होशरबा तफसीलात हैं, वो इस तरह की तफसीलात नहीं है। यानी उनके पास एक लाहौर की एक बड़ी पॉश एरिया के अंदर घर है, सोर्स अननोन है, छोटा मोटा घर नहीं है, इट्स अ ह्यूज विला, बंगलो है। वो कोई 4, 6, 8 कनाल पर मुहित होगा गालिबन, जो तफसीलात मेरे पास आई है। इर्रेगुलर है, उसका सोर्स आज तक क्लियर नहीं है। हु नोज वेयर इट हैज कम फ्रॉम, किसके पैसे के साथ वो बना, कोई उसकी डिक्लेयर्ड इनकम की कोई ऐसी पोजीशन ही नहीं है कि वो अपने आप को बयान कर सके। उनके टैक्स रिकॉर्ड्स ये जाहिर नहीं करते कि उनकी क्या पोजीशन है कि वो कैसे ये कर सके। सो मीनिंग बाय जो मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर हमने कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करनी होती या इस बात पर कि उनका कोई हमारे साथ नजरियाती इख्तलाफ है तो हम बर्दाश्त करते। नजरियाती इख्तलाफ को बर्दाश्त करना जमहूरियत का हुस्न है, वो मुझसे करें, लेकिन मिलाइन करके आर्टिकल 19A की सरीहन खिलाफ वर्जी करनी और आर्टिकल 121A के खिलाफ जाना, ये दो बड़ी अजीब बातें। फिर मैंने उनकी वो पोस्ट देखी जो वो खुद सोशल मीडिया पे डालते हैं अपने यूट्यूब चैनल्स पर और बाकी चीज़ों पर। उसमें वो बड़ा क्लियरली कहते हैं कि अब पाला हमसे पड़ा है, हम बताएंगे, हमसे पाला पड़ा है। हमारे पास तो ये भी एविडेंस है, बड़ी क्लियर एविडेंस है हमारे पास, उसके बड़े क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आई हैं कि ये जिस दिन तारीख धरना था, जिस तारीख को इमरान खान का धरना था, ये साहब उस दिन वाक़तन किसी बैरूनी साजिश में मुलव्वस थे। ये अपने धरने में बैठ के ये कहते पाए गए, ये सुना गया कि ये कह रहे हैं कि कहीं बाहर से को फोने शोने आ रही हैं। ये उसके प्रोपोगेशनिस्ट थे। एक बड़े मारूफ आलिम दीन के साथ इनकी ये सारी पूरी बातचीत हो रही थी, एक बड़े मारूफ आलिम दीन के साथ। और ये ही वॉज क्लियरली सेइंग कि जी देखे, हमें बाहर से इतलाएं आ रही हैं, हमें बाहर से कह रहे हैं पाकिस्तान में हमें किसी पे एतबार नहीं है, हमें बाहर वाले कह रहे हैं कि आप धरना उठा ले, ये हुकूमत जो है टूट जाएगी, इसको जल्दी इसके इनके साथ जो इत्तेहादी हैं वो उतार लिए जाएंगे। तो अगर तो कोई बैरूनी साजिश है, आपको ये बताई जा रही है बतौर आपके, बकौल आपके, इमरान खान आपको ये कह रहे हैं, इमरान खान PTI वाले, इस इमरान रियाज खान को PTI वाले को, और ये जो सो कॉल्ड इनकी कि मैं एक जर्नलिस्टिक पोजीशन से हूँ, तो वो उनको ये बता रहे हैं कि बाहर वालों ने कह दिए कि ये हुकूमत चंद दिनों के अंदर ख़त्म हो जाएगी, आप धरना उठा के चले जाएं। और ये पाकिस्तान के बड़े मारूफ आलिम दीन के साथ
ये बातचीत ये करते वहाँ पे सुने गए, बड़ी क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है, वो लोग खुद आके टीवी पे कह सकते हैं कि जिन्होंने ये सारी बातें सुनी। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस गिरफ्तारी पर अगर सारा पाकिस्तान निकलेगा तो मेरा ख्याल है कि फवाद अभी कह रहे थे सारा पाकिस्तान निकलेगा। फवाद साहब, सारा पाकिस्तान आप नहीं है, सारा पाकिस्तान पाकिस्तान की अफवाज के साथ, सारा पाकिस्तान पाकिस्तान की हुकूमत के साथ, पाकिस्तान की सालमियत के साथ, पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात की हिफाजत करने वालों के साथ, पाकिस्तान की सालमियत और इंटेग्रिटी के साथ है, आपके इस बेबुनियाद एजेंडे पर नहीं है। दूसरी बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ ज़रूरी है, कल यही मोहतरम मेरे करीबी दोस्त फवाद साहब कल तशरीफ़ ले गए, सुप्रीम कोर्ट में को ख़त डाल दिया और ख़त डाल के कहा कि ये बिजली 100 यूनिट से नीचे। वज़ीर कानून पंजाब मलिक अहमद खान इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वज़ीर कानून मलिक अहमद खान इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमने मुश्किल फैसले किए हैं, इसलिए किए हैं कि आज सियासत बचाने से पहले रियासत बचाने की बात है। और मैं आई एम स्पीकिंग फ्रॉम माई हार्ट, मैं कोई बिल्कुल पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए आपसे बात नहीं कर रहा। ये इमरान रियाज के केस में जो मैंने आपसे बात की है, मैं नहीं समझता था कि इतनी अहमियत होगी कि मैं आके बात करूं, बट मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ है। क्या कोई शख्स पाकिस्तान में इस्लामी शायर के खिलाफ बात कर सकता है? अगर करेगा तो यही आइन उसको रोकता है, इसी आर्टिकल 19A के अंदर रोकता है। क्या कोई शख्स पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ बात करेगा? यही आर्टिकल 19A इसको रोकता है। मैं बार बार एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन, ताकि ये बात वाज़े तौर पे ज़हन नशीं हो जाए कि जो कुछ भी किया गया है आइन और कानून के ऐन मुताबिक किया गया है। अगर ये जुर्म इनका जुर्म है तो इस जुर्म को ना करने की कोई वजूहात हैं तो वो बताएंगे, अदालत में साबित करें। मेरे नज़दीक एज द गवर्नमेंट ये इनका जुर्म है और इस जुर्म के लिए इनको ट्रायल फेस करना होगा। सेकेंडली, कल का जो बिजली का मंसूबा हमने 100 यूनिट्स और 100 यूनिट्स किन के, बड़ा इसके ऊपर एक सेर हासिल बहस हुई। 2 माह के करीब हम इस सोच विचार में थे कि इस मुश्किल वक्त में अपने उन तबकात को जो कि वज़ीर कानून पंजाब मलिक अहमद खान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।